Hello aspirants, this is me Arpita Pal, your educator, and we are here with another lesson in world history in which we are discussing world history, the course, and previously we have dealt with many topics like French Revolution, American Revolution, Nazism, Fascism. I hope you have gone through all of them. If not, please go through them once so that it is easier for you to understand further lectures. Before beginning students, I have an important announcement for you all. We are glad to announce an extension in the price hike till 24th October. Now you can subscribe to Unacademy Plus before 24th October 2020 at lower prices. India's top educators on Unacademy Plus are striving hard to make your UPSC CSE dream come true by easing your journey. All the topics, subjects and notes will be provided by Unacademy Plus, thus lowering your difficulties in your preparation. Now, at the comfort of your home, get access to all the notes, explanation and resources. But remember that the prices will increase after 24th October 2020. So hurry up, subscribe now to Unacademy Plus and also avail 10% discount by using the code SHARMA20. So all you have to do is that before 24th October, do use the code SHARMA20 because this will help you avail a discount of 10% as well. Also, these are the special batches for UPSC CSE Mains 2020. So, if you are giving Mains 2020, if you are attempting the same, do go through these lectures because they will be very beneficial for your preparation. So, enroll now by using the code SHARMA 2020. Now, let's begin. In today's lecture, we will be discussing about unification of Italy. Now, in the further lectures, like today, we will be discussing about unification of Italy and further we will be discussing about unification of Germany as well. First, I'd like to give you a brief background. पहले background समझते हैं इटली का. देखो इटली क्या था? It was a group of smaller states. ठीक है. अब मतलब अगर इटली को देखें तो एक geographical expression था. Basically बहुत सारे ग्रुप मिलाकर बहुत सारे ग्रुप जो थे वो पूरा मिलाकर इटली बना रहे थे, राइट. सो इट वाज अ ग्रुप ऑफ स्मॉलर स्टेट एंड टिल 1795 उसका बस एक जोग्राफिकल एक्सप्रेशन था कि ठीक है एक ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैं जो कि इटालियन स्टेट्स हैं. और एक इशू ये भी था इटली में कि यहाँ पर जो लीडर्स थे उनके बीच में हार्मनी नहीं थी, रीजनल डिस्पैरिटीज बहुत थी बिकॉज नेचुरली बहुत सारे स्टेट्स होंगे दैन मोर द नंबर ऑफ स्टेट्स मोर विल बी द डिस्पैरिटीज मोर विल बी द डिफरेंसेज. सो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस कि हार्मनी कम थी लीडर्स के बीच में और रीजनल डिस्पैरिटीज भी बहुत थी. By 1795 to 96, it was unified by Napoleon Bonaparte. We have already discussed it before. So, it was finally united by Napoleon. Now, how did unification of Italy took place, or what were the steps that were a part of the unification of Italy? Firstly, in 1858 or between 1858 to 59, there was a war against Austria. अब देखो बहुत सारे अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि इटली वॉज अ ग्रुप ऑफ स्मॉलर स्टेट्स, बहुत सारे स्मॉल स्टेट्स थे जो ये पूरा मिलाकर इटली बना रहे थे, राइट. सो अब अगर इटली को यूनाइटेड करना है या यूनिफाई करना है तो इन सब स्टेट्स को एक जगह लाना पड़ेगा, सबको मर्ज करना पड़ेगा एक कंप्लीट कंट्री बनाने के लिए. सो ये स्टार्ट कब हुआ प्रोसेस? इन 1858 टू 59. सबसे पहले ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट एक वॉर हुई एंड देन लोम्बार्डी को इटली में मर्ज कर दिया गया. देन इन 1860 नेपल, सिसिली, पामा, मोडेना, टस्कनी ये सारे स्टेट्स जो थे उनको मर्ज किया गया. एंड फाइनली बिटवीन 1866 टू 1877 वेनेशिया एंड रोम वर मर्ज्ड विद इटली. नाउ हाउ डिड ऑल दिस टेक प्लेस? वी विल डिस्कस इन डिटेल. Firstly, the question arises that why did the Italian unification take place? ऐसा क्या हुआ कि इटली को यूनाइटेड करना पड़ा? अलग अलग स्टेट्स रह रहे थे, ठीक है रहने देते, तो क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें इटली को यूनाइट करना पड़ा? सबसे पहले अगर बात करें द रीज़न वॉज डेस्पोटिक ऑस्ट्रियन रूल. नाउ आउट ऑफ दीज ग्रुप ऑफ स्टेट्स द वन विच वॉज द मोस्ट डोमिनेटिंग वॉज Austria. Austria was one of the most dominating states out of these, and it was basically Italy was almost under the dictatorial rule of Austria. So it was a despotic rule, and hence Italy had to be united. Firstly,
नेपोलियन, इन्फ्लुएंस ऑफ नेशनलिज्म, हम लोग ऑलरेडी नेपोलियन के केस में इनिशियली पढ़ चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देखे हो तो हमने पढ़ चुके हैं कि नेपोलियन वाज द वन हु वांटेड टू यूनिफाई और हु वांटेड टू ब्रिंग एवरी कंट्री बेसिकली बिकॉज ऑफ हिज एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज ही वांटेड टू ब्रिंग एवरी कंट्री अंडर हिज कंट्रोल. सो ये एक नेशनलिज्म का इन्फ्लुएंस था, दैट इज वाई ही वांटेड टू ब्रिंग एवरी कंट्री अंडर हिज इन्फ्लुएंस. Then Bourbon dynasty, again this was a basically despotic rule, dominating rule, तो ये भी एक reason था. Then papal states जो थे they were dominated by Italy. Basically अगर बात करें they dominated Italy. Basically अगर बात करें तो जो papal states जो कि अंदर पोप के कंट्रोल में थे वो इटली को बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे, तो वहाँ पर चर्च का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, सेक्युलरिज्म नहीं था, एक ही जो रिलीजियस या एक ही रिलीजन जो है वो डोमिनेट करता था. दिस वॉज वन ऑफ द रीजन. ऑल्सो जब जर्मन यूनिफिकेशन हुआ 1870s में तो इटली के लोगों को लगा अगर जर्मनी यूनिफाई हो सकता है तो वाई नॉट इटली. So this was also one of the reasons. Then economic development बहुत ज़्यादा हो रहा था under Napoleon, so it was decided or there was a need to have a united Italy in order to have equal economic development in all the states. Then fall of the European Congress in 1850. This also influenced the unification of Italy. मैज़िनी, काउंट केवर, ये सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इटली के यूनिफिकेशन में बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया, बहुत ज़्यादा हेल्प किया, बिकॉज दे वर द वंस अब ये उस आइडियोलॉजी के थे जहाँ पर दे मेंट कि ठीक है अब हमारे ऊपर क्या इनके ऊपर वो आइडियोलॉजी थी या ये इस तरह से इन्फ्लुएंस थे कि इनको समझ आ गया था कि हमारे ऊपर अब कोई फॉरेन रूल नहीं होना चाहिए, अब ये शुड बी वन सिंगल कंट्री बिकॉज अल्टीमेटली स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी. अगर आप यूनाइटेड हो तो कोई भी आप पर हमला करने से पहले 2 बार सोचेगा, पर अगर आप ऑलरेडी डिस्पर्स्ड हो, अगर आप ऑलरेडी फ्रेगमेंटेड हो तो कहीं ना कहीं आपकी जो सिक्योरिटी है उसको थ्रेट होगा, आपकी कल्चरल यूनिटी पे थ्रेट होगा. So it's better to stay united to be prevented from any other external danger as well. So role of Mazzini and Count Kever, who are they? We will discuss in detail, don't worry. And Vienna Congress. So these were few of the reasons that led to the unification of Italy. Also, we have seen that Italy was fragmented. Now let's see how it was fragmented. See, Italy was basically, I have already told you, it was a group of states, group of smaller states, right? This was Italy. Like, जैसे कि अगर यहाँ बात करें, यहाँ Piedmont, then Lombardy, then similarly here was Vienna. Then here these were the papal states, right? Similarly here we have read about Naples and Sicily. Then this was Sardinia, right? So इस तरह से बहुत सारे जो ग्रुप ऑफ स्टेट्स थे वो सब मिलाकर बना रहे थे इटली. अब इनको यूनाइटेड करना ज़रूरी था ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ पर इक्वल हो सके. यहाँ पर जो फ्रैगमेंटेशन है अगर ज़्यादा होगा तो कहीं ना कहीं एक आउटसाइड थ्रेट होगा वो कम हो सके. दीज वर द रीजंस विच लेड टू द यूनिफिकेशन ऑफ इटली. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वियना कांग्रेस. नाउ कांग्रेस ऑफ वियना अंडर बॉर्बन डायनेस्टी रूल हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं. सो पीपल रिएक्टेड अगेंस्ट द डिस्पोटिक रूल एंड यूनिफिकेशन स्टार्टेड 1815 ऑनवर्ड्स. देन व्हाट हैपेंड? देन व्हाट हैपेंड? अभी यूनिफिकेशन जो था वो कौन कौन उसमें इन्वॉल्व थे? कॉमन मैन वाज इन्वॉल्व, द वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, रेवोल्यूशनरी इंस्टीट्यूशंस, ऑल वर्क टुगेदर टू यूनाइट इटली. नाउ देयर वर फ्यू इवेंट्स दैट लेड टू द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, such as the event in 1810 a secret society Carbonari was established in 1810 and the main objective of this society was to free Italy from despotic Bourbon rule. और एक despotic Austrian rule या फिर जो dominating rule था उससे हमें फ्री करना था इटली को, ये इनका ऑब्जेक्टिव था कार्बोनरी का. अब आप लोगों को मेंशन करना है ऐसी एक सीक्रेट सोसाइटी का या इस तरह के एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का जो आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा होगा जो हमारे रेवोल्यूशनरीज ने एस्टैब्लिश किया था. Do mention in the comment section the secret society or a secret organization established by the leaders who worked for independence of India. You have to mention in the comment section. Revolutionaries है इंडिया के, उन्होंने कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया था? You have to mention in the comment section. Now coming back to the topic,
ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होने लग गया, लोगों में पॉलिटिकल अवेकनिंग आ गई, और ये बहुत बड़ा रीजन था कि यूनिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गई थी। देन 1830 में अगर देखें, यूनिफिकेशन ऑफ इटली पेपर्स पर तो था कि ठीक है, लोगों ने कहा ओके फाइन, जो यूनिफिकेशन है इटली का वो होना चाहिए, बट ओनली इट वाज ओनली ऑन पेपर। उसको अगर ग्राउंड पर देखें तो कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं था, ठीक है। 1830 तक अगर देखें तो यूनिफिकेशन की बातें हो रही थी, सब हो रहा था, बट इट वाज ओनली ऑन पेपर्स, इंप्लीमेंट नहीं हो रहा था या वो इंप्लीमेंट होता हुआ नहीं दिख रहा था। ऑल्सो जो मेटर्निक थे उन्होंने रेवोल्यूशनरीज को सप्रेस करने के लिए आर्मीज भी भेजी कि किसी तरह से इटालियन यूनिफिकेशन नहीं होना चाहिए। 1848 फर्स्ट वॉर ऑफ इटालियन इंडिपेंडेंस टुक प्लेस। लॉम्बार्डी एंड वेनिस, यहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी थी। रोम को कैप्चर कर लिया गया विद द हेल्प ऑफ, सो वेनिस, लोम्बार्डी, दीज वर ऑल कैप्चर्ड विद द हेल्प ऑफ फ्रांस एज वेल। और ऑल्सो basically the Sicily, that proclaimed Sicily Naples, we have already seen what are Sicilian Naples. Sicilian Naples जो थे उन्होंने भी कहा कि ठीक है हमें भी आज़ादी चाहिए, तो छोटे छोटे रीजन्स थे, उन्होंने भी कहा कि नहीं हमें आज़ादी चाहिए, क्योंकि they were all influenced by the outside events. तो Sicily also proclaimed independence. Then role of thinkers and revolutionaries were very much important in the unification of Italy, such as Mazzini. He established Young Italy and took part in the revolution of 1830. So जब वो 1830s के revolution में पार्ट लेकर आए थे, उनको लगा कि कहीं ना कहीं मैं जिस रीजन को बिलोंग करता हूँ, मैं जिस कंट्री को बिलोंग करता हूँ, उसको भी आज़ादी मिलनी चाहिए। So he was influenced by those events. Hence he also established Young Italy, ताकि लोगों को वो और ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकें और ज़्यादा इंकरेज कर सकें कि हमें किस तरह से आज़ादी चाहिए। But he was also sent to exile. कैबर, द पीएम ऑफ पीडमोंट एंड सर्दिनिया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मिलिट्री एक्शन की जगह इन्होंने डिप्लोमेसी यूज की। सो ही वाज अ वेरी गुड डिप्लोमैट, सो ही यूज डिप्लोमेसी फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। डिप्लोमेसी कैसे कि उन्होंने न्यूज़पेपर्स में या इस तरह से धीरे धीरे आर्टिकल्स जो थे उनको पब्लिश जो हो रहे थे उनको फेवर करना शुरू कर दिया। ऑल्सो ही वॉज हेल्प बाय किंग विक्टर इमैनुअल, राइट। सो ही वॉज हेल्प बाय किंग विक्टर मैनुअल टू एज वेल। इनको ये समझ आ गया था कि कि इटालियन यूनिफिकेशन में जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो क्या हैं, और उन ऑब्स्टेकल्स को हम लोग मिलिट्री यूज करके किसी भी तरह से नहीं हटा सकते। वी नीड टू बी डिप्लोमैटिक, एंड हेंस ही यूज्ड एन इकोनॉमिक एंड डिप्लोमैटिक पॉलिसी। देन हु वाज गैरिबाल्डी? Garibaldi was also a participant of Young Italy, which was established by Mazzini. He also participated in the February Revolution of 1848. Finally, he came back in 1854 from America, and he realized that now it is time to unify Italy. अब कैवर की डिप्लोमेसी या फिर इकोनॉमिक पॉलिसी की हमने अभी बात की कि जो कैवर थे, जो प्राइम मिनिस्टर थे पीडमोंट और सर्दिनिया के, उन्होंने किस तरह से डिप्लोमेटिक पॉलिसी यूज की। फर्स्टली उन्होंने सिविल और राइट्स जो थे, सिविल राइट्स देना इंश्योर किया लोगों को जो उनके पास नहीं थी। उन्होंने कहा कि आई विल गिव यू योर सिविल राइट्स और रिक्वायर्ड राइट्स। Also he ensured the liberty of press. So press formed a very important part of the country. So he ensured that press is given all the liberty it needs. उन्होंने आर्मी को धीरे धीरे स्ट्रेंथन करना शुरू किया, ताकि कोई भी अगर फ्यूचर में डेंजर होता है तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग आर्मी होनी चाहिए। ओल्ड बिल्डिंग्स जो थी या जो ओल्ड इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स थी उनका फोर्टिफिकेशन शुरू कर दिया। ऑल्सो अगर आप देखें तो उन्होंने जो प्रिविलेजेस थी जो चर्च की, क्योंकि एक ही जो रिलीजन था उसकी डोमिनेंस थी, तो उनकी जो प्रिविलेजेस थी चर्च को वो सारी अबॉलिश कर दी गई। डिप्लोमैटिक रिलेशंस उन्होंने फ्रांस के साथ स्टैब्लिश किए, सो दैट इन केस ऑफ एनी नीड फ्रांस विल बी एबल टू हेल्प इटली। Also, he played a very important role in Crimean Wars. Now, let us discuss about Crimean Wars. Crimean Wars क्या थी? I'll explain you on a screen. See, basically, Crimea की अगर बात करें, it is a peninsula. Right, so it is a peninsula. Now what happened that in 1854 it was a part of the Ottoman Empire, right? So it was a part of the Ottoman Empire and it started to break by 1854. ऑटोमन एम्पायर जो था उसमें इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से वो उसका जो टूटना शुरू हो गया था। अब व्हाट हैपेंड कि अब क्योंकि ये टूटना शुरू हो गया तो जो छोटे छोटे रीजन्स बने थे दे स्टार्टेड प्रोक्लेमिंग इंडिपेंडेंस। तो क्रीमिया ने कहा नहीं हमें इंडिपेंडेंस चाहिए बिकॉज ऑफ द डेस्पोटिक रूल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। अब क्रीमिया जो था उसकी लोकेशन ऐसी थी, सपोज दिस इज क्रीमिया। अब क्रीमिया को कौन कौन से कंट्रीज, रशिया चाहता था कि मैं क्रीमिया को डोमिनेट कर लूं, मुझे क्रीमिया मिल जाए। ऑल्सो
other countries like Britain, France, they also wanted to take over Crimea. ऑल ऑफ देम वांटेड क्रीमिया. क्यों? क्योंकि क्रीमिया की लोकेशन ऐसी थी, एक तो एशियन एक्सेस था, ऑल वेदर रोड था, ऑल वेदर रीजन था, सीधे सीधे जो आप एशिया को पहुंच सकते थे वाया ब्लैक सी, तो एशिया अफ्रीका को इजीली आप लोग पहुंच सकते थे. दैट इज वाई इट वॉज वॉन्टेड बाय ऑल. सो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि अ वॉर टुक प्लेस बिटवीन रशिया एंड ब्रिटेन फॉर क्रीमिया, फॉर द कंट्रोल ओवर क्रीमिया. राइट. सो These were the Crimean Wars. अब 1854 में क्या हुआ? 1854 से 55 के बीच में it was very much easy for Russia to win. 1854 से 55 के बीच में वॉर हुई. Russia was almost about to win. But what happened कि ब्रिटेन को किसने हेल्प कर दिया? I already told you Clever was a very good diplomat. So Britain was helped by Clever. ब्रिटेन ने कहा कि नहीं, हम आपकी हेल्प करेंगे क्रीमियन वॉर्स में. सो व्हाट हैपेंड? रशिया लॉस्ट and Britain won. So Russia was defeated by the British. अब अगर आप देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया पर ईस्ट इंडिया कंपनी उस वक्त रूल कर रही थी. यहाँ पर से भी जो सोल्जर्स थे उनको वहां भेजा गया. कहाँ भेजा गया? क्रीमियन वॉर्स में फाइट करने के लिए. और उसी का एक रिजल्ट था कि इंडिया में जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट आया था. General Service Enlistment Act. If anybody knows about it, do mention it in the comment section. Otherwise, I'll explain you in the next lecture. But अगर आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, पढ़िए एक बार या तो फिर उसको comment section में mention कीजिए. नहीं आता तो I'll explain you in the next lecture what was the General Service Enlistment Act. अब क्या हुआ? क्रीमियन वॉर्स हो गए. क्रीमियन वॉर्स के बाद ब्रिटेन तो जीत गया. तो अब जो कॉन्फिडेंस था जो ब्रिटिशर्स का और जो फ्रांस का या ब्रिटेन का और फ्रांस का जो फेथ था वो कहीं ना कहीं कैवर ने जीत लिया था. व्हाट हैपेंड? हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि डिप्लोमेटिक जो पॉलिसीज थी बहुत अच्छी थी कैवर की. सो कोलंबियस पैक्ट साइन किया गया. फ्रांस और इटली के बीच में मैट्रिमोनियल अलायंसेस हो गई और ये डिसाइड किया गया कि हम आपको कुछ टेरिटरीज देंगे, आप हमको कुछ टेरिटरीज दीजिएगा मैट्रिमोनियल अलायंसेस के थ्रू. ऑल्सो दे वर ऑल टुगेदर, फ्रांस एंड इटली वर ऑल टुगेदर अगेंस्ट ऑस्ट्रिया. देन स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन. 1859 में लोम्बार्डी को ले लिया गया. 1860 में पार्मा, मोडेना, टस्कनी आ गया. 1860 नेपल्स एंड सिसिली. 1866 वेनिस एंड फाइनली इन 1870 रोम. बट अब अगर वेनिस की बात करें, ये जो सारे रीजन्स थे ये तो फ्रांस की हेल्प से आ गए. बट अगर वेनिस की बात करें, वेनिस को इतना ईजी नहीं था कॉन्कर करना बिकॉज फ्रांस ने बीच में ही वॉर छोड़ दी थी. क्योंकि जो फ्रांस की अपनी अलग डिप्लोमेटिक रिलेशन है दूसरे कंट्रीज के साथ, तो फाइनली नेपोलियन जो है उन्होंने बीच में ये वॉर छोड़ दी थी. तो जो वेनिस था वो एकदम से नहीं आ पाया था. उसको आने में या उसको कॉन्कर करने में 1866 तक का टाइम लग गया था. देन इसी तरह से बहुत सारे जो रीजन्स हैं वो कहीं ना कहीं इटली के पास आ गए थे. लोम्बार्डी की अगर बात करें तो वो ऑलरेडी अंदर ऑस्ट्रियन ऑक्यूपेशन था. ऑस्ट्रियन पीपल ने क्या किया? ऑस्ट्रिया के लोगों को इंस्टिगेट किया गया. ऑस्ट्रिया के लोगों को बोला गया या कैबर ने जाके ऑस्ट्रिया के लोगों को बोला कि किसी भी तरह से आप हम लोगों के साथ आ जाइए या हमें यूनिफाई होना चाहिए ताकि हम लोग पर कोई एक्सटर्नल थ्रेट ना हो. ऑल्सो नेपोलियन III ने यहाँ पे उनकी हेल्प की. देन पीडमोंट और ऑस्ट्रिया की बात करें, यहाँ पर एक वॉर हुई 1859 में क्योंकि स्पिल ओवर इफेक्ट था. भाई दूसरी रीजन्स में अगर कहीं ना कहीं एक नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो इमर्ज हो रही है तो कहीं ना कहीं उसकी जो आइडियोलॉजीज है वो यहाँ पे दूसरी कंट्रीज को भी इन्फ्लुएंस करेंगी, दूसरे रीजन्स को भी इन्फ्लुएंस करेंगी. सो इट वॉज अ स्पिल ओवर इफेक्ट. Then Parma, Modena, Tuscany, they all revolted. The people of Parma, Modena and Tuscany revolted and Cavour helped by Britain because he had already won the faith of Britain and France. तो Cavour को ब्रिटेन ने भी हेल्प किया. नेपल्स और सिसिली की बात करें सो 1860 में बर्बन डायनेस्टी के अंदर था. जो पीपल थे, जो वहाँ के लोग थे, उनको गैरिबाल्डी ने बहुत इन्फ्लुएंस किया. ऑल्सो देयर वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन रेड शर्ट्स दैट वॉज स्टैब्लिश्ड बाय गैरिबाल्डी. और गैरिबाल्डी के इस ऑर्गेनाइजेशन ने जो नेपल्स और सिसिली थे वहाँ के लोगों को इन्फ्लुएंस किया कि आप किसी तरह से यूनिफिकेशन में हेल्प करें. Finally, in 1866, already Venice was under Austrian occupation, but Battle of Sodava took place, in which Prussia was against Austria and Venice was merged with Italy. So this is how all these regions came to Italy. Finally, the last nail in the coffin, that was Rome. Rome, which is also the capital of Italy. 1870, it was under the Pope. Battle of Sodava took place, and Rome was made the capital of Italy. Sorry, this was the Battle of Sedan. सो बैटल ऑफ सेदान, सोडावा जो थी उससे वेनिस मर्ज हुआ था, जबकि बैटल ऑफ सेदान जो थी उससे
जो रोम था वो आ गया था. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल. सी, अगर हम वेनिस का इंटीग्रेशन देखें या यूनिफिकेशन देखें, इट टुक प्लेस इन 1886. Now, why was Venice important? The importance was, or the significance was, because it was also known as the entry point to Italy. Venice was also important. Venice क्यों चाहिए था? छोड़ देते, नहीं करते यूनिफाई, उसको नहीं मर्ज करते, बट इट वॉज एन एंट्री पॉइंट टू इटली. ऑल्सो जो कल्चरल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस थी वेनिस की वो बहुत ज़्यादा थी, एंड इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्लोरी ऑफ, और इट प्रोवाइडेड ग्लोरी टू इटालियन यूनिफिकेशन बिकॉज ऑफ इट्स कल्चरल एंड इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस. अब क्या हुआ, जो इमैनुअल थे, विक्टर इमैनुअल टू, ही वेंट टू बिस्मार्क. बिस्मार्क जो कि प्रशिया के लीडर थे, प्रशिया के पास गए. सो इमैनुअल, he went to Bismarck, who was the leader of Prussia, right? So what did he do? He asked that Italy will, if Italy attacks Austria, then Prussia versus Austria के केस में जो होगा, Italy will attack Austria, अगर प्रशिया और ऑस्ट्रिया के बीच में कोई भी डिफरेंसेस होते हैं. दस इसकी वजह से क्या हुआ कि वेनिस जो होगा, वेनिस वो दे दिया जाएगा इटली को. दिस वाज वन ऑफ द ट्रीटीज दैट वाज, और दिस वाज वन ऑफ द पैक्ट दैट वाज साइंड बिटवीन द टू. सो अब इसकी वजह से क्या हुआ, जब बैटल ऑफ सोडावा हुई, बैटल ऑफ सोडावा में क्या हुआ, प्रशिया वर्सेस ऑस्ट्रिया हुआ, एंड फाइनली इसका रिजल्ट क्या हुआ, क्योंकि इटली हेल्प बेसिकली इटली अटैक्ड ऑस्ट्रिया एज वेल, तो ऑस्ट्रिया जो था वो तो दोनों तरफ से घिर गया, प्रशिया से भी और इटली से भी. एज अ रिजल्ट वेनिस वॉज मर्ज्ड विद ऑस्ट्रिया बिकॉज प्रशिया वन द वॉर. दिस इज हाउ वेनिस वॉज इंटीग्रेटेड विद इटली. देन यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, दिस वॉज द बैटल ऑफ सेडान इंस्टेड ऑफ बैटल ऑफ सोडावा. सिमिलर वॉज द केस विद बैटल ऑफ सेडान एज वेल. बैटल ऑफ सेडान कैसे हुआ कि जो रोम था वो ऑलरेडी पेपल स्टेट्स के अंदर था, मतलब पोप के अंदर था, तो क्योंकि वहाँ पे क्रिश्चियनिटी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, उसको भी जो यूनिफिकेशन के लिए ज़रूरी था रोम भी. सो द पीपल ऑफ, और बेसिकली केवर की अगर बात करें तो दे वर वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी टू मर्ज रोम. देन फ्रांस वर्सेस प्रशिया वॉर हो गई, बैटल ऑफ सेडान. बैटल ऑफ सेडान किसके बीच में थी, फ्रांस वर्सेस प्रशिया. तो जब ये वॉर हुई उसके बाद क्या हुआ, इटालियन आर्मी जो थी वो भी वहां पर जो रोम था वहां पर वो लोग एंटर कर गए, क्योंकि वहां पे कोई फ्रेंच सोल्जर्स नहीं थे. क्योंकि अगर आप एक ही जगह सारे के सारे सोल्जर्स को अलाइन कर देंगे तो दूसरी जगह जो दूसरा एंड है दैट वाज एम्प्टी. सो द इटालियन आर्मी एंटर्ड रोम एंड देन दे मर्ज्ड इट विद इटली, एंड हेंस रोम वाज मेड द कैपिटल ऑफ इटली. Now Pope was made the sovereign ruler of Vatican City as well. So this was how finally Italian unification took place. I hope you have understood everything. कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई है, please mention in the comment section and I'll explain it in the other lessons as well. Thank you.